اے کاش ہمیں تو فرشتوں کا سردار نہیں بناتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایسے ہی نازل بیانات کے لیے ہمارے چینل میں جڑے رہیں۔ شکریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست ساتھی، جو مذہب اسلام میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، کہ ہمیں آپ ابو بکر صدیق بناتے تھے تاکہ میں آپ کے محبوب کو اپنے کاندھے پر لے کر کے گھوما کرتا ہے۔ کیونکہ سبھی کو پتا ہے میرے بھائی کہ جب مکہ والے چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو کہ آج نعوذ باللہ محمد کو ختم کر دینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ آج ہمارا بھی ایسا اعمال مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ میری بھی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے، وعدہ ہے ان کا۔ لیکن ہم ایسا کریں گے تب۔ لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی، دیکھا چاروں طرف سے دشمنان ہیں، مٹی میں پڑ کر کے ہے نا پھونک دیا، پھونک کر کے اٹھا کر اس مٹی کو پھینک دیا۔ اب سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کس نے آنکھ میں مٹی دیا، کس نے آنکھ میں مٹی دیا، سب آنکھ ملنا شروع کیا ہے نا۔ ابو جہل تھا تو جاہلوں کا باپ، لیکن بڑا عقلمند تھا، بہت تیز تھا، وہ جانتا تھا۔ کہہ رہے تم آپس میں کیوں لڑتے ہو پاگلو، ارے گدھو تمہارے بیچ میں جو مٹی ڈالنے والا تھا دیکھ کے چلا گیا، وہ دے کر کے چلا گیا۔ کہا دیکھو محمد بن عبداللہ کو تلاش کرو۔ جب وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے تو بھائی بستر پر تو ہے آدمی سویا ہوگا، پہلے بستر کھول کر کے دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پہ نہیں ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر بے خبر سوئے ہوئے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہوئی تو کیا ہوگی؟ آج ہم لوگوں کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم اللہ کے مانگنے کے بغیر فوراً اللہ رب العزت کے اوپر انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں دیکھتا ہے کہ ساری پریشانی میری سر پہ دے دیا، یہ ظالم بادشاہ بھی میرے سر پر مسلط ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، چاروں طرف پریشان۔ اللہ تبارک تعالیٰ پریشانی دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ دیکھیں اس پریشانی کے حالت میں عالم یہ بندہ مجھ کو کیسے یاد کرتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں اگر یاد کرنے کے لیے کسی کو یاد کرنا ہے تو میرے بھائی ہم اگر قرآن پڑھنے کے لیے جانتے ہیں تو قرآن کے ترجمہ کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں۔ ایک ویسے بھی آدمی گزرے ہیں، ویسے بھی نبی گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 سال 2 سال نہیں 80 سال تک کے لیے کوڑ کی بیماری دے دیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرا بہت صبر کرنے والا وہ بندہ ہے۔ شیطان کہا کہ آپ تو امتحان ہی نہیں لیتے ہیں، امتحان لے کر کے دیکھیں تب نہ جانیں گے ہم۔ اللہ نے کہا میں تم کو اختیار دیتا ہوں، تم امتحان میں اس کو مبتلا کر دو، دیکھو تب پوچھنا اس کی حالت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، مکھی کی شکل میں آج ان کی ناک کے پاس بیٹھ گیا اور آگ جیسی پھونک مارا، ان کے ناک میں پورا جسم چھالا چھالا پڑ گیا۔ پھر بھی کوئی جا کے خیریت پوچھے، کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بھوکے ابھی اللہ کا شکر ہے، اللہ اگر ایک ٹائم کھلائے تو دوسری ٹائم بھی کھلائے گا۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم سال بھر کے لیے اسٹاک کرتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں، سال بھر تک ہم آرام سے گھومتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، کیا کہیں گے ہم اپنا محنت کر رہے ہیں اس سال بھر کا اسٹاک کر لیے۔ ارے اللہ جب چاہے گا تبھی آپ سال بھر یا مہینہ دن کا اسٹاک کر پائیے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر پائیے گا۔ دیکھتے ہیں نظر کے سامنے آتا ہے کہ دھان بہت اچھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بلا آ جاتی ہے، ہوا چل جاتی ہے، یا ایسا کیڑا چل پڑتا ہے جو ہمارے دانا کو کھا جاتا ہے، ہاتھ میں آیا وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے صبر کو شکر کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر کہا کہ نہیں، پھر امتحان لیا جائے، کون کی بیماری دے دی۔ جو لوگ ان کے یہاں کام کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، وہ لوگ بھی ان کی بیوی کو
को बीबी रहमत को कहा इसको उठा कर के ले जाओ, नहीं तो हम लोगों के घर में भी कोढ़ की बीमारी फैल जाए। तो इसको यहाँ लेकर के क्यों बैठे? जो लोग उनके यहाँ नौकरी करते थे, बीबी रहमत जब उनके पूरे जिस्म को उठाने के लिए कोशिश किया, अकेले कैसे उठाएंगे, इनको लेके जाएंगे, सारे गांव के लोग हमको परेशान कर रहे हैं, बैठ के रोने लगी, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कोई रास्ता हमें हमवार कर दे, रास्ता दिखा दे कि मैं इनको लेकर के किसी जंगल की तरफ जाकर के अपना बस वहीं रहूं। फरिश्ते आए, आने के बाद कहा है रहमत क्यों घबराती हो, क्यों परेशान हो तुम? कहा देखते रहिए मेरे शौहर पड़े हुए हैं, सारे गांव के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ले जाओ इसको उठा करके। कहा रहमत एक चीज बता देता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ करके तुम उठाओ, पूरी चारपाई को उठा लोगे। बीबी रहमत ने थोड़ा सा यकीन हुआ, थोड़ा सा भी जो है इंसानी तो है, लेकिन कहा है रहमत की बात सुन लो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श नहीं उठ रहा था, फरिश्ते नहीं उठा पा रहे थे, तो यही ला हौला वला कुव्वता पढ़ करके उठाया और कुर्सी उठा लिया अपने कांधे पर। बीबी रहमत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनके पूरे जिस्म को उठा के ले जाकर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। फिर सब्र किया, फिर जब कोई जाके पूछे अय्यूब क्या हाल है, कहा अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह अगर इस हाल में मुझसे खुश है तो हम भी खुश हैं। तो शैतान एक दिन कहने लगा बीबी रहमत को, बात क्या बहुत लंबा है मेरे भाई, हमको असल मौजू की तरफ चलना है। बीबी रहमत को कहने लगा है रहमत एक बकरा ज़िबा करो बगैर बिस्मिल्लाह का, और उसके चौराहे पर ले जाकर के डाल दो। बीबी रहमत आई और आने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा है अल्लाह के नबी, एक बूढ़ा आदमी लट्ठी लेकर के आया और आने के बाद मुझको कहने लगा बगैर बिस्मिल्लाह के एक बकरा ज़िबा करो और ले जाकर के चौराहे पर रख दो, गरीब गुरबा लोग उसको ले लेंगे और तुम्हारे शौहर ठीक हो जाए। आज जैसे हम लोग कहते हैं ज़्यादा दिन बीमार हो जाए, फलना ठीक हुआ, हाँ जो वो ठीक, क्या हाथ चहने पकड़ता हो कि ठीक है, अल्लाह ने ठीक कर, तू ठीक बात ठीक है। लेकिन जब उन्होंने कैसा उनका ईमान था, यकीन था कि अपने शौहर से जाकर मशवरा करती है, ऐसा ऐसा शक्ल का आदमी था, आया और उनको ऐसा ऐसा कहा कि रहमत वो शैतान नहीं था, जो उनको बहकाने के लिए आया था। अब देखिए इस जगह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं मेरे भाई, ए अल्लाह कहीं ना एक नबी की बीवी जहन्नम की तरफ न चली जाए, अल्लाह कब तक तू मेरा इम्तिहान लेता रहेगा मौला, मेरी बीवी को शैतान हर मोड़ पर जाकर के बहका रहा है। अल्लाह ने कहा अय्यूब 80 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बंदा कब बोलेगा ये कि अल्लाह कब तक तू इम्तिहान लेगा। अय्यूब मैं इंतजार में, आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। जो फरिश्ते को भेजने के बाद उन फरिश्तों ने जब सलाम किया तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो जब उनको जो है वहाँ पर एक नहर जारी किया, एक खजूर का पेड़ उगाने के बाद जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस नहर में पहली बार डुबाया तो उनके बदन से जो है जितना कीड़ा था सब झड़ करके जमीन पर गिर गया। दूसरी बार डुबाया, उठाया तो जिस्म का जख्म सारा छूट गया। तीसरी बार जब उस पानी में गोता लगाया तो पहले के जैसा नौजवान और खूबसूरत हैकल मर्द बन गए। बन जाने के बाद तब फरिश्ते ने पूछा अल्लाह के नबी, हम लोग जब आए थे उस वक्त तो आपको सलाम किया हमने, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा अल्लाह के फरिश्ते मैंने आपके सलाम का जवाब दिया था, दिल से दिया था, जबान से नहीं दिया था। कहा दिल से दिया, जबान से क्यों नहीं दिया? जोर से हम लोग भी सुनते कि हाँ सलामती की दुआ मेरे लिए कर रहे हैं। कहा कि उस वक्त अल्लाह की एक मखलूक मेरे जिस्म का गोश्त यानी होठ पर बैठ के मेरा गोश्त वो खा रहा था। अगर मैं आपको जबान से सलाम का जवाब दे देता, वो कीड़ा मेरे अपना लुक्मा उसका छूट जाता और वो जमीन पर गिर जाता। कल क़यामत के दिन अगर मेरी पूछ हो जाती तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देता? मेरे भाई अंबिया अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के एक मखलूक के लिए, एक कीड़ा के लिए उसका लुक्मा ना छूट जाए, इसलिए जबान से उन्होंने जवाब नहीं दिया, दिल से जवाब दिया। और आज हम लोगों के बीच में वो बीमारी सबसे ज्यादा पड़ चुकी है, चल पड़ी है, वो कैंसर वाली बीमारी। मैं जिस मौजू पे जा रहा हूं मेरे भाई, हुकूक तलबी की आवाज,
भाई भाई के पास दौड़ता है कि मेरा हक दे दो, बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाता है, छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है, कभी बूढ़ा बाप जवान बेटे के पास जाता है, ए बेटा अब मेरे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं है, वो तंदुरुस्ती नहीं है कि मैं तुमको कमा करके खिला सकूं। ए बेटा खुदा के बाद अगर कोई सहारा है तो तुम्हारा सहारा है, बेटा तू मेरी मदद कर दे, हमारे इस बुढ़ापे का तू लट्ठी बन जा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जा। कौन कहता है? बूढ़ा बाप कहता है। जिस बूढ़ा बाप के घर में जब बचपन में जवान एक बेटा पैदा लेता है, वो बेटे को गोद में जब लेता है, जब बच्चा थोड़ा तो लहरती हुई जबान से बोलता है और बाप से बार बार पूछता है, ए अब्बा इस दरख्त के पेड़ पर क्या बैठा हुआ है? कहता है कौवा बैठा हुआ है। अगर एक बेटा 100 बार पूछता है तो अपनी औलाद की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में वो 100 बार अपने बेटे को मोहब्बत से कहता है, बेटा कौवा है इसके ऊपर बैठा हुआ, काला रंग है उसका और वह टाएं टाएं कर रहा है। और जब वो बाप बूढ़ा हो जाता है, उसकी नजर कमजोर हो जाती है, तब उसी जवान बेटे से वो बाप कहता है, ए बेटा ये कान के पास क्या टाई टाई कर रहा है, क्या चीज है ये? कहता है अब्बा कौवा है। फिर कहता है बेटा ये क्या चीज है? कहता है अब्बा कौवा है। तीसरी बार कहता है बेटा इस पर क्या है? अबे बुड्ढे तेरी अकल मर गई, तू बार बार मेरा दिमाग खा रहा है, एक बार कह दिया कौवा है कौवा है कौवा है, चुपचाप बैठा नहीं रह जाता। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वला तकुल लहुमा उफ्फिल लकुम, मत कहो माँ बाप को उफ भी। अगर 3 बजे रात को हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, अगर बाप ने या माँ ने आवाज दिया, अरे बेटा अब्दुल करीम मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी दे दो बेटा, हम उठते हैं कैसे? ओ नींद खराब कर दिया बुढ़े ने, इतनी गहरी नींद में दिन भर खेत कर से हल जोत करके आया था, बुढ़े ने बुढ़ी ने मिलकर के जो है नींद को खराब कर दिया। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम उफ भी कर बोल दोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए मैं उन जवानों से कहूंगा, और जो भाई के माँ बाप अभी जिंदा है वो खुश नसीब है कि उनसे दुआ लेकर के अपनी जन्नत की बशारत ले ले। उनसे वो दुआ दे देंगे तो दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, आखिरत भी जन्नत बन जाएगी मेरे भाई। और आजकल खासकर एक दूसरे के हक को दबाने के लिए हर वक्त हर एक इंसान भेड़िए के जैसा एक दूसरे के ऊपर निशाना लगाए हुए है, ये कैसे कमजोर पड़ जाए या गिर जाए कि मैं इसकी सारी जायदाद को कब्जा करूं। जिस तरह से एक दुकानदार के पास एक ग्राहक जाता है, ग्राहक सोचता है कि अगर दुकानदार अपनी नजर को फेर ले तो मैं इसकी जड़ को ऐसी काटूं कि इसको 3 दिन तक होशना है। और एक ग्राहक सोचता है दुकानदार अपने दिलो दिमाग को इधर उधर फेर ले, मैं इसकी ऐसी जड़ को काटूं इसको 8 दिन तक होश नहीं आए। यानी हर एक इंसान एक दूसरे के ऊपर भेड़िए के जैसा निशाना लगाए हुए है कि मैं कैसे इसको दबोचूं। एक बहन दौड़ करके आती है, ऐ मेरे भाई मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बाप की जायदाद में से मेरा जो भी हक निकलता है, ऐ मेरे भाई मुझे अल्लाह के वास्ते दे दो ताकि मैं अपने शौहर की जो है ईमानदारी उसकी खिदमत कर सकूं, उसका इलाज कर सकूं। तो गांव वाले भी कुछ ऐसे लोग कहेंगे, देखो हकरोश लेने के लिए आएंगे, अबे मनहून शैतान कहेगा, तुम बाप की जायदाद निकाल करके 4 भाई हिस्सा करते हो तब तुमको हकरोश नहीं लगता है, और बहन लेने के लिए आती है तब तुम कहते हो हकरोश लेने के लिए आया। अरे अल्लाह ने तुम्हारा हिस्सा तो पहले ही कुरान में 8 आना हिस्सा ज्यादा कर दिया, उसको तो 4 आना ही दिया है, उसको भी देने में तुम्हारे गले में फांसी लगती है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई, कल कयामत के दिन वही बहन कहा हमको जहन्नम की तरफ लेकर के चला जाएगा। इसलिए मौत आने से पहले मौत की तैयारी कीजिए और अपने बहन की, भाई का, बाप की, माँ का, अपने पड़ोसी के हक को अदा करके जाएंगे। ये ना सोचिए हमारा इंतकाल होगा जनाजा पड़ा रहेगा, मोदी साहब तो कहेंगे ही मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते बंदे का हक बंदे पर, अल्लाह का हक अल्लाह पर, अल्लाह के वास्ते इसको माफ कर दीजिए। अब ऊपरी दिल से अगर कोई अच्छा मोदी साहब चल रहा चाहिए चलो माफ कर दें, लेकिन वो माफी नहीं होगी मेरे भाई, इतनी बात याद रखिएगा। जब तक आप खुद से अपने से जाकर के नहीं कहिएगा कि मैंने माफ कर दिया तुमको, तब तक माफी नहीं होगी। और महर का भी मसला बड़ा खराब है मेरे भाई, लोग क्या करते हैं फलाना बातें चल लेंगे, महर माफ क्या दें, वो भी नहीं होगा। कल क़यामत के दिन वो देना पड़ेगा आपको।
वो महर अदा करना वाजिब है, उसका हक है। महर में जो मान लागे वो उसके इज्जत की कीमत है, आप उसको अदा करके जाइए, वो भी उसका हक है। कल क़यामत के दिन उसकी ने तो आपको पूछ हो जाएगी कि तुमने उसके हक को क्यों नहीं अदा किया। हाँ फलाना बाप का दिन पूरी जिंदगी कमा के वोट माफ नहीं कर सकते, तो उसकी कीमत कहाँ दी है? जरा जरा बात पर डंडा चलाते थे उसके ऊपर। इसलिए मेरे भाई, मौत आने से पहले हम मौत की तैयारी करें, अपने भाई की, अपनी बहन का, अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और बहन का जो हक है, अगर ज्यादा से ज्यादा, एक चीज बताते हैं मेरे भाई, हम लोग सदका अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% में अब 90% लोगों का मिजाज बन गया है कि सदका से बला करती है। अब आज सुन लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बहन के ऊपर जितना खर्चा कीजिए वो सब सदके से अच्छा बेहतर सदका है। बहन के ऊपर जितना भी खर्चा कीजिएगा और जो सदका करते हैं उससे बेहतर सदका बहन के ऊपर खर्च करना है। चाहे खुश रहे, चाहे बीमारी में या गम में, किसी में भी रहे, गए जब भी उनको कुछ न कुछ खुश कर दिया, ले करके मिठाई वगैरह लेकर के चले गए, उनके पास कुछ रुपए उनके हाथ में दे दिया, मैं अपने तरफ से खुशी में तुमको दे रहा हूँ, इसको रख दो। लेकिन आज हम लोगों का मिजाज नहीं है उस तरह का मेरे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बाद लोग क्या करेंगे, अगर बहन अपना हक लेकर के चली गई, क्या कहेंगे, तुम तो सब चीज लेकर के चले जाओ, हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, खून का रिश्ता तो बाकी है अभी। क्यों कहा जाता है, चाहे अल्लाह ताला ने क्यों कहा है, गैर मुस्लिम को हिंदू, को हिंदू, काफिर को काफिर मत कहो। अल्लाह ने सख्त लहजे में मना किया है। अगर तुम उसको काफिर कहोगे, आखिरी वक्त में अगर वो कलमा पढ़ कर इस दुनिया से चला गया, उसका पूरी जिंदगी की गुनाह हमारे सर पर थोपा चला जाएगा और वो साफ सुथरा जन्नत की तरफ चला जाएगा। क्यों? सभी आदम की औलाद है। हम अपने तरफ से इस दुनिया में आकर के एक अलग अलग मजहब तब्दील कर लिया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आखिर में कहूंगा मेरे भाई कि पूरा 60 साल 70 साल की जिंदगी हमारी गुजरी, तो पूरी जिंदगी हम यही देखते रहे, भाई के पास दौड़ते रहे, मेरा हक, एक छोटा भाई बड़े भाई के पास, बड़ा भाई छोटे भाई के पास, बाप बेटे के पास, बेटा बाप के पास दौड़ता रहा, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े एक बारिश जमीन के लिए। अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने मुकाबला करने के लिए? तुमको तो चूर कर दूंगा, पीस के रख दूंगा, यहाँ तक बोल करके जाके मुकदमा लड़ते हैं मेरे भाई। तो वहां देखेंगे हम 60 साल 70 साल 100 साल की उम्र तक मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक चिल्लाएंगे हम। जब कल मर करके इस दुनिया से जाएंगे मेरे भाई, हश्र का मैदान बर्पा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने लोग इस दुनिया से आखिरी वक्त तक जाएंगे, तमाम के तमाम लोग वहां पर मर्द औरत इकट्ठा होंगे। वहां पर अल्लाह तबारक तआला तमाम बंदों से, तमाम बंदियों से कहेगा, ऐ मेरे बंदे और मेरी बंदियों, आज तुम लोग मेरा हक अदा करो। तमाम लोग सोचेंगे मेरे भाई, 60 साल 70 साल की उम्र तक तो हम जानते थे मेरा ही हक खाली होता है, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, हम तो यही जानते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन सा हक मांग रहा है, कैसा हक मांग रहा है? यानी जो पैदा किया, जो खिलाया, जो पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वो वहां भी याद दिलाएगा कि मेरा हक क्या है तुम्हारे ऊपर। तब अल्लाह कहेगा, देखो ये जब दुनिया में भी इसको दौलत दिया था तो उस वक्त भी ये भूल गया था और यहाँ भी भूल गया। तब अल्लाह कहेगा, मेरी दौलत वह है कि मैंने पैर जैसी दौलत दिया, हाथ जैसी दौलत दिया, जबान जैसी दौलत दिया, आंख जैसी दौलत दिया, कान जैसी दौलत दिया, दिमाग जैसी दौलत दिया, इल्म जैसी दौलत दिया। इसको कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया, बस यही हिसाब दे जाओ, यही मेरी दौलत है। हमें पैर की अपनी कीमत नहीं है मालूम है, अहमियत मालूम नहीं है। एक लंगड़े आदमी से जाके पूछिए इसकी कीमत क्या है। हमें हाथ है, एक लूला आदमी से पूछिए इस हाथ की कीमत क्या है। जो गूंगा है उससे पूछिए कि जबान की कीमत क्या है। जो अंधा है उससे पूछिए कि इस हाथ की कीमत क्या है। जो बहरा है उससे पूछिए कि इस कान की कीमत क्या है। वो बताएगा कि इसकी कीमत और इसकी अहमियत क्या है। और अल्लाह ने हमें, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज से नवाजा है। हाथ, पैर, आंख, कान, जबान, दिमाग, हर चीज से नवाजा है। अल्लाह का बहुत बड़ा इंसान है। अल्लाह कहेगा, कितने वक्त इन पैरों से मेरी मस्जिद को आबाद करने ले जाया करते थे,
वही हिसाब दे दो। पैर कहेगा ए अल्लाह 24 घंटे में तो 22 घंटा में तेरे घर की तरफ जाया करता था, ए अल्लाह इन हाथों से ज़कात सत्कार बांटा करता था। इसलिए ज़कात बांटते थे कि मौलवी के मदरसे के बच्चों को तुम ताना मार के कहना मेरा ज़कात खाने वाला, मेरा सदका खाने वाला मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। अल्लाह कहता है मेरे तुम्हारे ज़कात और सदके की जरूरत मेरे नजदीक नहीं है। तुम इस तरह से हमारे बंदों को नेड़ा मार के ताना मार के कहा करते थे। किसी के गांव के आदमी को अगर मदद कर देते थे कल होकर के उसको ताना मारते थे, देखने नहीं है कल हमने फेंक रहे थे हमारा तारीफ ऊंची आवाज में बात। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे भाई। जब हमारी जबान वहां पर भी झूठ बोलने की कोशिश करेगी, कुरान में एक आयत है मेरे भाई, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब हमारा हाथ पैर आंख कान जबान सारी चीज झूठ बोलने की कोशिश करेगी, अल्लाह कहेगा, इस आयत का तर्जुमा है सूरह यासीन में जाके देख लीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी जबान पर ताला मारवा देगा, कहेगा कि ताला मार दे इसकी जबान। मेरा पैर कहेगा अल्लाह 24 घंटे में ये 23 घंटा शराब भट्टियों में अपने वक्त को गुजारा करता था, 23 घंटा दूसरों की चुगलखोरियों में गुजारा करता था, दूसरों की बहु बेटियों पर नजर उठा करके देखा करता था, जुड़ाओं की भट्टों महफिलों में जाके बैठा करता था, दूसरों की चुगलखोरियां किया करता था, इन हाथों से ज़कात सदका देकर ये जो है ताना मारा करता था। और कान से अपने कहानियों के गाने सुनने में जितना इसको मजा आता था, अगर कोई कुरान की तिलावत या कुरान पढ़ता था तो उसको डांट के बंद कर दिया जाता। तो कहने का मकसद है मेरे भाई, इस दुनिया में अगर हम अपने आप को तैयार होकर के नहीं जाएंगे तो मेरा हाथ पैर आंख कान जबान सारी चीजें अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा, ए अल्लाह अपनी पूरी जिंदगी किस तरह से गुजारा है, कितनी घटिया जिंदगी गुजारा है, ये हमारा हाथ पैर आंख कान जबान सारी चीजें जवाब देगा। यहाँ तक कि हदीस पाक के अंदर में आता है, मेरा पेशाब का रास्ता भी इंसानी जबान में अल्लाह से कहेगा, अल्लाह इसने ऐसे ऐसे गलत रास्तों पर इस्तेमाल किया है मुझे कि मुझे भी बोलने में शर्म आती है। यानी शर्मगाह को भी बोलने में शर्म आती है कि हमको ऐसे ऐसे गलत जगहों पर इस्तेमाल किया है कि हम बोलने में मुझे शर्म आती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे भाई। इसलिए मौत आने से पहले हम लोग मौत की तैयारी कर लें मेरे भाई, अपने भाई का, पड़ोसी का, माँ बाप के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें और अपने मजलूम बहनों की भी हुकूक को अदा करने की कोशिश करें। और एक चीज़ बताते हैं मेरे भाई, जब हम दीन से जुड़ेंगे तब हमारे अंदर ये चीज पैदा होगा। हम दीन से दूर रहेंगे तो हमारी जिंदगी जानवरों से बदतर जिंदगी गुजरेगी। इसलिए अब भी वक्त है मेरे भाई, मेरे सर पर से ये जालिम बादशाह हट जाएगा, हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, 5 वक्त की सिर्फ पाबंदी आप कर ले। माँ बाप के हजरत मौलाना अख्तर साहब पाकिस्तानी अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत थानवी का जो है मामूला नकल करते हैं कि अगर जो शख्स इस नाजुक दौर में अपने माँ बाप भी बाल बच्चे के हुकूक को अदा करके गैर महरमों से अपनी नजर को बचाकर सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जैसा अल्लाह वाला कहलाएगा। तो क्या भाई इंशाअल्लाह हम लोग इसकी तैयारी करेंगे? इंशाअल्लाह। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं अदा की वो लोग